All right, today what we will do. So last time we just have left before the jet test. So there is one hypothesis testing which is left, which is ANOVA. Okay, ANOVA means analysis of variance. So when do we perform ANOVA? First of all, t-test we perform when your data sample is less than 30. Z-test we perform when your sample is greater than 30. When we perform ANOVA, so ANOVA is a statistical technique used to determine if there are significant difference between the means of three or more independent groups. So if the group are three or more, maybe we can say greater than three groups. Okay, means you can say three group, three columns, whatever. More than three or more than three. So it helps to understand whether the variability between groups means is greater than what would be expected by chance. So how many types of ANOVA we have? Like we have one way, the test the effect of a single factor on a continuous dependent variable. Test the effect of single factor on a continuous dependent variable. Two ways ANOVA is test the effect of two independent factors and their interaction on a continuous dependent variable. So repeated measures are ANOVA used when the same subjects are used for each treatment. Example in a within subject design. There's three types of ANOVA test. Okay, one, two, three. If single factor is there, this is one way. Two independent factors, then we have two way. So what are the assumptions in the ANOVA? For example, we can say hypothesis in ANOVA is like यहाँ पे null hypothesis क्या मानी जाती है कि the means of all groups are equal. मीन्स हो गए किसी भी, हम लोग कह सकते हैं कि एक ग्रुप ही हो गया, एक ग्रुप ही हो गया और एक ग्रुप यहाँ हो गया, तो जो उसके मीन्स हैं वो तीनों इक्वल है, ऐसा मान के हम चलते हैं, ठीक है, इक्वल. तो दैट इज नल हाइपोथेसिस. और इसको सपोर्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे. तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है कि एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. किसी भी एक ग्रुप का मीन अगर डिफरेंस होता है तो इट विल मेक अ डिफरेंस. और क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि इंडिपेंडेंस होंगे जो तीनों हमारे ऑब्जर्वेशन सारे इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जितने भी हमारे ग्रुप्स थे वो सब इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, जितनी फैक्टर्स हैं, मतलब किसी का किसी से कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी लिंक नहीं होगा.
there will be no link. Independent normality मतलब कि the data within each group should be approximately normally distributed. ठीक है, तो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए लाइक दिस वन. कोई भी डेटा इज शुड नॉट बी लाइक दिस वन, skewed नहीं होना चाहिए. Homogeneity of variance, the variance among the group should be approximately equal. इसका वेरिएंस अगर 2 है तो उसका हमारे दूसरे ग्रुप का भी आसपास होना चाहिए. ठीक, बहुत अलग वेरिएंस नहीं होगा. ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन 10-15 न चला जाए, बहुत हाई ना हो जाए. तो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड. So what is the formula? The F statistic is used in ANOVA to determine the ratio of variance between groups. तो MS यहाँ पे हो गया हमारा the is a mean square between group, right? Mean square means the difference, and this is MS within the mean square within the group. तीन ग्रुप हैं, ठीक है. तो ये कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से? वी कैन से कि मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के बीच में जितना मीन स्क्वायर होगा, मे बी दैट इज जितना भी एरर होगा हमारा इन इसके मीन में और इसके मीन में, 2, राइट, मे बी 2-3, जो भी डिफरेंस होगा इन सब में, दैट इज बिटवीन द ग्रुप्स. और विदिन विदिन मीन्स इस ग्रुप के अंदर इंटरनली कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है विद इन द ग्रुप. मे बी कुछ 3 होगा, 4 होगा, वट एवर. सो दिस इज you have to calculate for the group, between the group and within the group. This is how we find it. So we are importing numpys. Let's see how to we can do with the help of pandas. तो numpy import किया, stats import किया हमने यहाँ पे, random seed डाली, और यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. या ग्रुप 3. तो हाउ डज दिस ग्रुप लुक लाइक, मैं दिखा देता हूँ. तो ये हमारा मीन होगा, और ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये हमारा साइज ऑफ द डेटा पॉइंट्स, राइट. एक ग्रुप दिखाता हूँ बिल्ड करके. You will see that the data revolves around the this mean. तो देखो 70 के आसपास हमारा रिवॉल्व कर रहा है डेटा सारा. स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो +10 मतलब 80 तक, में और मे बी 60 तक, 60 से लेके 80 तक सारी वेरी
वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे टेस्ट किया है ये पता करने के लिए कि दीज थ्री ग्रुप्स आर डिफरेंट और सेम। उसके बाद लाइक वी हैव विद इन द स्टेट्स वी हैव वन फंक्शन एफ वन वे। ठीक है, we don't have to do manually like making function on that. We already have one inbuilt function, we can use this. So group 1 group 2 group you can pass over here, and you can find out the abstracts and p values. Okay, so abstracts value it will print, and even the p values, अगर p वैल्यू हमारा 0.05 से ज़्यादा आए तो what we will do, अगर हमारा p वैल्यू ज़्यादा है तो we have to accept the null hypothesis, or we reject the null hypothesis if we are getting too high p value, more than 0.05. तो यहाँ पे p वैल्यू एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। p वैल्यू इज 0.03। We can say कि we have very less evidence of keeping this null hypothesis. 0.03 means 3%. Only 3% is the probability to keep this data, जो कि बहुत कम है. That's why we are rejecting the null hypothesis. There is a significant difference between the group mean, right? You can see. Okay, now I'm giving you one data. You apply this and then tell me whether we should there is a difference between these three group or not.
Just wait, I'm giving question. Okay, so you can check your chat. There is exam scores across different teaching methods. Apply the this ANOVA test and tell me whether they are different or same. Yeah, solve this and give me the answer. Exam scores across different teaching methods, traditional, ऑनलाइन और हाइब्रिड. ये मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, तो आप बताओ कि कुछ डिफरेंस है इनमें मार्क्स में, या तीनों मेथड का कोई असर नहीं है. किसी का आंसर नहीं आया? जल्दी, थोड़ा सा. इजी है, बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी, बस आपको अपनी एरे में इंसर्ट करना है ये. फास्ट. एक भी आंसर नहीं आया.
सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। डू दिस देन आई विल गिव इट। Weight loss across different diet, and then we have customer satisfaction scores across different stores. Three data you have. Now do it very fast. Pure the data set N1. What is the meaning of this? To reject the null hypothesis, there is significant difference between group. Uh, F value F वैल्यू तो काफी बड़ी आ रही है. P value is, oh my god, so P value is too much. But wait, P value is 4.6. तो इसमें तो P वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है. दैट इज लाइक वेरी large probability of getting the null hypothesis true. So how it can be P value is low? So what is 4.63? P value is, oh okay okay, round to the power. Okay okay. हाँ हाँ, okay okay. So we have to reject it. Okay. No no no, आपने ये अच्छा -5.0. ओके, मैं देखा नहीं हूँ. बहुत छोटी वैल्यू आ रही है. तो डेटा सेट 1 के लिए यहाँ पे है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स. ठीक है. व्हाट अबाउट द वेट लॉस अक्रॉस डिफरेंट डाइट्स? इसके लिए there is only one student who is solving. Rest are resting. Rest are resting.
रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, सेकंड डेटा सेट का भी है। ओके, 99.3 एंड 3 टू द पावर 8, बहुत बड़ी वैल्यू है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। So there is difference, right? Weight loss में भी there is difference in the diet. Okay. Customer satisfaction across different store. Word for this one. Ashish 89 value 6 point approximately 0.0. Decision reject the hypothesis at alpha. So you rejecting for which data set? Ashish, third one. Weight loss. Okay, second data. Reject the null hypothesis. Okay. How do people getting a different p value? एक का p वैल्यू 3.40, एक का 6.03। कैसे यूज कर रहे हो आप, दोनों का अलग आ रहा है? Sir, p value is near to zero. It's in decimal after 60. एक का सेकंड 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 के लिए आप दोनों का p वैल्यू मैच क्यों नहीं कर रहा? डेटा तो सेम है। एटलीस्ट मैच तो करना चाहिए p वैल्यू। डेटा रैंडम नहीं है हमारा। डेटा सेट 3 के लिए p वैल्यू 69.9, p value again very small, reject na processor. I will check for second data set again. हाँ, एक बार सेकंड डेटा सेट के लिए आप दोनों चेक करो, आशीष एंड निखिल। Why you are getting different values? Let me also check. Okay, let me check. Group 1, Group 2, Group 3.
99.39 जिसका था वो सही है यहाँ पे तो। यार निखिल। और यहाँ पे 3.40 दैट इज करेक्ट। आशीष आप थोड़ा देख लेना मे बी। और रिजेक्ट जनरल हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द। ठीक है। Third data set, static 69, p value 2.4 minus सुकन्या वेरी नाइस। उसके लिए फिर लाइक आई थिंक रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस राइट, देयर इज डिफरेंस इवन इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर इज डिफरेंट। तीनों स्टोर के लिए डिफरेंट। ओके फाइन। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे बिफोर वी डू दिस कि वन वे कब यूज करें, टू वे कब यूज करें, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ओके सो लेट मी टेल यू। तो वन वे, one way ANOVA when to use single factor, use one way ANOVA when you want to test the effect of single independent factor on a dependent variable। जब एक वेरिएबल हो आपके पास तो यू कैन यूज वन वे। Comparing multiple groups, it is typically used when comparing the means of three or more groups that are based on one factor। ठीक है, अभी तो एक ही फैक्टर था, मीन हमें चेक करना था, वो भी तीन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वी कैन यूज दिस। ओके। Example scenario, you want to compare the exam scores of students who used different teaching method like traditional online जो हमने किया अभी। Here the teaching method is a single factor। तो teaching method एक single factor है, इसके लिए चेक करें तो one way यूज करेंगे। ठीक है। And you're comparing the means of the exam score across। अब देखते हैं कि हाँ एग्जाम्पल तो हमारे पास हो गया। So few examples are, is there a significant difference in average weight loss between diet? Does customer satisfaction differ significantly across। ठीक है, ये तो जब एक फैक्टर चेक करना हो तो हमें दैट इज एक फैक्टर बोल लो या एक फीचर बोल लो, वन वे यूज करते हैं वहाँ। ठीक है। अब देखेंगे हम टू वे कहाँ यूज होता है। वी कैन इजीली एंटिसिपेट कि टू वे किसके लिए यूज किया जाएगा। व्हेन टू यूज टू वे, टू फैक्टर यूज टू वे एनोवे ANOVA when you want to study the effect of two independent variables factor। टू फैक्टर्स जैसे हो जाए उसमें तब, जैसे कि
Interaction effect, it can also test for an interaction between effect between the two factors, determining whether a combined effect of the factors on a dependent variable is different from the each other factor independently. For example, जैसे कि you want to study the effect of both teaching method, traditional, online, hybrid, and study time also. देखो टाइम एक दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है, तो इस केस में हम लोग टू वे यूज करेंगे. Less than 5 hours, 5 to 10 hours, more than 10 hours और एग्जाम स्कोर. हेयर यू हैव टू फैक्टर, टीचिंग मेथड और स्टडी टाइम. दो फैक्टर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि डज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे फैक्टर वन, ये फैक्टर वन हो गया, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, अमाउंट ऑफ वाटर टू द प्लांट्स फॉर ग्रोथ, ये दूसरा फैक्टर हो गया. दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड वाटर अमाउंट. So does customer satisfaction depend on both the store location and time of day? दो फैक्टर इसमें भी हो गए, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसे दो फैक्टर, ठीक है. ठीक है, तो डेटा जो होगा हमारा एक यहाँ पे डेटा फ्रेम की फॉर्म में होगा, ठीक है, जिसमें क्योंकि वी हैव टू फीचर्स, राइट. ऑलराइट. तो कुछ एप्लीकेशन है अनोवा के कि कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे पता चल गया होगा कि हाँ यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कंपेयरिंग द यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज, मेडिसिन में कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट, मार्केटिंग में कंपेयरिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन अक्रॉस स्टोर, एजुकेशन में कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट टीचिंग मेथड. बहुत जगह यूज हो सकता है, ठीक है, ठीक है. कुछ मशीन लर्निंग के बैकएंड पोर्शन में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और वेरियस टेक्निक्स भी है. पर वो अभी डिस्कस मैं नहीं करूंगा, वो हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है. सब कुछ शुरू में डिस्कस नहीं करूंगा. चलो, लेट्स स्टार्ट द मशीन लर्निंग बेसिक्स टुडे, and then we will in future will use with our real data how to use this machine learning in our real data. So we'll do this, but before that let's do the very basics, like what is supervised learning. uh, Supervised learning is a type of machine learning where the model is trained using the labeled data. This means that each input data points come with a corresponding output label which the model learns to predict.
तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि जहाँ पे हमारे पास डेटा के साथ साथ हमारे पास जैसे डेटा है और उस डेटा के साथ लेबल भी हो, जैसे ये डॉग है, जैसे ये हमारा कैट है तो कैट लेबल, डॉग है तो डॉग डॉग, तो हमारे डेटा में भी क्वेश्चन और आंसर दोनों होने चाहिए। ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल, so you can say this is we are training here, so our जो लर्निंग मॉडल होगा वो दैट विल क्लासीफाई। ठीक है, कि कौन सा कैट है कौन सा डॉग है, क्योंकि आपने आपके डेटा में सब कुछ था, राइट। सुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा सेट, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, चलो ये सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये वाला, दिस वन। तो हियर वी कैन सी कि यूजर आईडी दे रखा है, जेंडर, एज, सैलरी, और यहाँ पे 0 1 की फॉर्म में ये भी दे रखा है कि उस इंसान ने पर्टिकुलर आइटम परचेज किया या नहीं। 0 इज फॉर नो, 1 इज फॉर यस। ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे हमारे पास फीचर्स हो और हमारे पास आंसर्स भी हो, दैट इज कॉल्ड ए सुपरवाइज्ड। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है। So what is classification? Classification is like involves predicting a category or class और क्लास लेबल, जैसे कि यस और नो में बोल सकते हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन एग्जांपल है। यू कैन वेयर यू हैव द कैटेगरीज। ठीक है, 0 1 हो गया, स्पैम, नॉट स्पैम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास हो। कॉमन एल्गोरिथम्स के लिए यूज होती है, जैसे डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो दीज आर ऑल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि रिग्रेशन इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग ए कंटिन्यूअस वैल्यू। जैसे आप घर देखने जा रहे हो तो घर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो दैट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अगर ईमेल में स्पैम चेक कर रहे हो तो ये तो स्पैम ईमेल स्पैम होगा या नहीं होगा, दो ही चांसेस हो सकते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और रिग्रेशन मतलब कि कोई बीच का कोई बीच का भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और यू कैन से कंटिन्यूअस वैल्यू, प्रेडिक्टिंग प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन इट्स फीचर। और इसके एल्गोरिथम हमारे होते हैं, लीनियर रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गया, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, ये सब। देखो रिग्रेशन का आप आउटपुट यू कैन सी ओवर हियर।
uh, this temperature of a place, pressure, relative humidity, wind direction और wind speed. ठीक है, तो wind speed हमारी कुछ भी हो सकती है. 10 में we cannot define the wind speed. Wind speed could be 3 kilometer per hour, 2, 2.9, 2.7, 2.6, right? It could be anything. That is a regression problem. Okay, in machine learning basics, what is model training? The goal of supervised learning is to find a function model that best maps input to output. The function is learned from the training data. The process is, yes. So basically, what we do, we have some kind of data which we use to train our model, right? This is our machine learning model. इसको train करेंगे, then he will tell us what will be the answer, whether a particular follows, whether the particular answer is A or B. So we have to train this model. Okay, this is our machine learning model. तो अब मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना बढ़िया काम नहीं कर रहा, वो देखने के लिए मॉडल इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग वर्सेस टेस्टिंग we do. After training this model on a portion of data, like जिससे हम ट्रेन करते हैं, we call it training data, and we evaluate its performance separate portion of the data testing set to ensure it generalizes well to new unseen data. तो पहले उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग ऑन द न्यू डेटा. तो जैसे जैसे उसके आंसर्स सही होते हैं या गलत होते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेल इट कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, यू शोड हिम एप्पल. ठीक है, आपने बताया कि ये एप्पल है, उसको आपने ट्रेनिंग दिया. अब वैसा ही सेम आइटम आपने इसको दिखाया, अगर आपके मॉडल ने बोला ये एप्पल है, तो ये आपका मॉडल बढ़िया काम कर रहा है. फाइन. उसी मॉडल को आपने अगर एक दूसरा आइटम दिखाया, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इफ इट इज स्टिल सेइंग एप्पल, ऐसा है, तो योर मॉडल इज नॉट वर्किंग वेल. ठीक है. दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा विच यू यूज टू ट्रेन, एंड दिस इज योर टेस्टिंग डेटा. तो एक्यूरेसी, द परसेंटेज ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड लेवल्स, जितने सही आंसर देगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. और हमारे जो रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो एक्यूरेसी चेक करें, अगर क्लासिफिकेशन में, तो आप इजीली यू कैन से कि हाँ एप्पल, कैट, डॉग, इजीली आप यस और नो के से पता कर सकते हो कि हाँ ये इसने सही आंसर दिया है, गलत दिया है. बट रिग्रेशन में कैसे पता करोगे? रिग्रेशन में we call it mean squared error, the average of the squares of difference between the predicted and actual. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी, मे बी यू कैन से कि मेरा कुछ डेटा था, दैट इज ट्रेनिंग डेटा. ओके, तो दिस येलो वन इज अ ट्रेनिंग डेटा. और फिर आपने एक मॉडल तैयार किया. दिस इज आवर लाइन, तो दिस इज द बेस्ट फिट लाइन ऑन आवर डेटा. ठीक है.
बेस्ट बेस्ट फिट लाइन का पता कैसे चलेगा हमको? इसके जो बीच की डिफरेंस होगी, पॉइंट्स, दिस शुड बी द मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए। जितना भी डिफरेंस है आपके 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 जो मॉडल, जो आपका जो इक्वेशन है, आपकी जो लाइन है और आपके ट्रेनिंग डेटा के बीच में जो भी डिफरेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये प्रिडिक्शन शो करेगी और ये आपका एक्चुअल वैल्यू शो करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो प्रिडिक्टेड और आपके एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरर। दिस इज एरर। ठीक है, ये एरर आपका सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम एरर होनी चाहिए। जितनी दूरी कम रहे उतना ज़्यादा बेस्ट है। इसी से हम लोग एक्यूरेसी इसकी निकालते हैं। फाइन। Overfitting, underfitting we will do in the next class. Unsupervised we will do in next class. Uh, we will start the algorithms also on the real data set. तो मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि रियल डेटा पे कैसे यूज़ करना है और क्या फ़ायदा होगा इन एल्गोरिथम्स का यूज़ करके। ठीक है, that we will do in the next session. Till then, have a good day. Bye bye. See you soon. Welcome.